Hello everyone, welcome you all in lecture 37 on differentiation. Okay, so actually we are dealing with the exercise 1.5. Okay, this is your example third. First and second example we have already completed in a previous lecture. Okay, so these are all show that problem. Okay, so please see x and y is given to you. What is show that factor? xy d2y by dx square plus a equal to 0. ओके सो d2y by dx square तो निकालना है आपको. सो सबसे पहले तो वो टारगेट करते हैं कि यहाँ पे dy by dx, क्योंकि d2y by dx square तो डायरेक्टली तो नहीं निकालोगे. सो dy by dx इज टारगेट. ओके व्हाट इज दैट? dy by dx ये कौन से टाइप का फंक्शन है आपका? दैट विल बी पैरामीट्रिक फंक्शन. फार्मूला क्या होगा? dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो dy by dt क्या आएगा? Twice a t की डेरिवेटिव, that will be only twice a. Okay, and here dx by dt means at square has the derivative twice at. So here 2 to get cancelled, so 1 by t square is only done. But you have to find out here d2y by dx square. So this 1 by t once. Okay, so let's say 1 by t. So 1 by t get differentiate once again. So 1 by t has the derivative minus 1 by t square. But आप किसके साथ differentiation ले रहे हो? x के साथ. तो t की फिर से आएगी यहाँ पे dt by dx. So minus 1 by t square तो जैसे का वैसा है यहाँ पे. dt by dx को क्या बोला है आपने कि that is a reciprocal of dx by dt. So dx by dt twice at है. So dt by dx क्या होगा? 1 upon twice at. डन. सो ये क्या आएगा आपका? -1 अपॉन ट्वाइस 80 क्यूब. ट्वाइस 80 क्यूब. ओके, नाउ LHS is given to you xy d2y by dx square plus a. Okay, so now here x into y, x is what? 80 square into y is what? Twice 80, and d2y by dx square is what? -1 upon twice 80 cube. Okay, plus a. So again this t square, this t, this t cube get cancel. Now here 2a get cancel. So remaining factor is what? A into -1, that will be minus a plus a equal to 0. Equal to RHS is there. Okay, so in such a way that you can calculate this type of example. Okay. Okay, so let's move to our second example. If y equal to what? E power m tan inverse is there, show that this equal to 0. Okay, so यहाँ पे 1 plus x square आया है, so definitely डेरिवेटिव तो आपको लेना है because tan inverse x की डेरिवेटिव क्या आती है? 1 upon 1 plus x square. Okay, so try it for that. y equal to given है आपको e power m tan inverse x. सॉल्व करने लायक कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दे. y की डेरिवेटिव आएगी dy by dx. सबसे पहले कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? e पावर x. तो e पावर x की क्या आएगी? e पावर x ही आएगी इनटू द डेरिवेटिव किसकी आएगी? m tan इनवर्स x की. क्या आएगी वो? m जैसे का वैसा tan इनवर्स x की 1 upon 1 plus x square. Then this 1 plus x square get transferred to here, so 1 plus x square dy by dx. Okay, equal to this m. सबसे पहले m लिख लेता हूं, और यहाँ पे e पावर m tan इनवर्स x की जगह क्या है? y. डन. अब आपको d2y by dx स्क्वायर में प्रूव है, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 plus x square dy by प्रोडक्ट रूल लगेगा डेफिनेटली वहां पे, क्योंकि दो x के फंक्शन है. तो 1 plus x square dy by dx की डेरिवेटिव क्या आएगी? d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx जैसे का वैसा रहेगा यहाँ पे, और 1 plus x square के. सो 1 की तो 0 है, x square की कितनी आएगी? 2x इक्वल टू m. y की डेरिवेटिव आएगी dy by dx because m is constant there. So here 1 plus x square d2y by dx square. Okay, so dy by dx अगर कॉमन लिया, because ये इधर भेजोगे तो dy by dx कॉमन निकलेगा. ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x minus m plus m is minus m equal to 0. Check the proof here, you will get the proper proof of that. Okay, okay, so this is your third example. If x equal to cos t,
y इक्वल टू व्हाट e पावर mt। सो दैट देखो क्या करना है 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। इस टाइप का एक प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल में देखा था। वहां पे x की जगह sin t था और y की जगह सेम था e पावर mt। तो यहाँ पे देखो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में मिलता है? एक तो साइन इनवर्स t के मिलता है या फिर कॉस इनवर्स t के। तो सबसे पहले इस y को ही डिफाइन करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू a पावर mt, जैसे वहां पे डिफाइन किया था। तो यहाँ पे देखो t आपको दिख रहा है और यहाँ पे भी t दिख रहा है आपको x में। तो यहाँ पे t क्या होगा? cos इनवर्स x, cos इनवर्स x होगा, बराबर है। तो ये मिल गया आपको cos इनवर्स x, जो आपको शो दैट के लिए जरूरी था, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करोगे देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y की डेरिवेटिव क्या आएगी यहाँ पे dy by dx e पावर m cos इनवर्स x है, मतलब e पावर x है, फिर से e पावर x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x। m तो जैसे का वैसा रहेगा, cos इनवर्स x की क्या आएगी -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। देन ये स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आप उधर शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू माइनस m और e पावर m cos इनवर्स x क्या है आपका y। स्टेप्स आपके सेम रिपीट हो रहे हैं, सेम, बराबर है। देन क्या करोगे, आपको 1 माइनस x स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं चाहिए, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो यू विल गेट हियर 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू नेगेटिव का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो m स्क्वायर y स्क्वायर, m स्क्वायर y स्क्वायर। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करोगे क्योंकि आपके आंसर में d2y by dx स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, यहाँ पे सिंपल निकालोगे। देन आप किससे डिवाइड करते थे जनरली इस टाइप के प्रॉब्लम में 2 dy by dx से अगर आप डिवाइड करोगे सो यू विल गेट दिस आंसर। So please try for yourself the remaining portion of this, okay? Okay, so let's move on to your fourth example. If y equal to x plus tan x is there, you have to show that cos square x d2y by dx square minus 2y plus 2x equal to 0, okay? तो यहाँ पे देखो अभी LHS को आपको छोड़ा के उसका आंसर 0 भी बता सकते हैं सीधा सीधा। तो LHS के लिए आपको किस किस फैक्टर की जरूरत है? y तो आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है, so your target is to find out simply d2y by dx square and put in this LHS, you will get 0 directly, okay? So y equal to x plus tan x is there, so सबसे पहले लिख लेते y equal to x plus tan x, this is given data, then dy by dx, okay? So x की डेरिवेटिव क्या आएगी 1 plus tan x की क्या आएगी sec square x, done। So now d2y by dx square, once again differentiate that, so 1 की डेरिवेटिव तो आएगी यहाँ पे आपकी 0, sec square x की पावर की निकलेगी 2 sec x, 2 sec x, okay, into the derivative of sec x, once again sec x into tan x, sec x into tan x, so you will get here 2 times of sec square x into tan x is there, done। Now LHS you can take here, what is that, cos square x d2y by dx square minus 2y plus 2x is there, okay? So here cos square x जैसे का वैसा लिख लेता हूं यहाँ पे d2y by dx square आपके पास क्या है 2 times sec square x into tan x, तो sec square x is the reciprocal of cos square x, उसमें लिख लेते हैं, तो 2 tan x divided by cos square x लिख लेते हैं यहाँ पे, डन, minus 2 times y is there, so y क्या है यहाँ पे देखो x plus tan x plus 2x is there, बाद में क्या है यहाँ पे plus 2x, okay? So here cos square x get cancel, यहाँ पे देखो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2x मिलेगा, ये -2x plus 2x गेट कैंसिल होगा और यहाँ पे -2 into tan x होगा, तो यहाँ पे देखो 2 tan x बचा है
और ये -2 tan x वो भी कैंसिल होके सीधा सीधा आपका आंसर मिलेगा 0 इक्वल टू सिंपली RHS राइट हैंड साइड. ओके okay, let's move on to our fifth example. Y equal to e power x into sin bx is there. Show that y2 minus y से y1 plus a square plus b square into y equal to 0. Okay. So यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग क्लियर कर देते हैं कि y2 का मीनिंग क्या होता है. So y2 means the second order derivative. y1 means the first order derivative. So y2 का मीनिंग क्या होगा d2y by dx square and y1 का मीनिंग होगा dy by dx. Okay. तो यहाँ पे y इक्वल टू e पावर x sin bx है. सो dy by dx सबसे पहले निकाल लेते हैं. कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. ओके सो e पावर x जैसे का वैसा sin bx की डेरिवेटिव cos bx done into the derivative of bx is what simply b. Okay now here sin bx as it is and the derivative of e power x की डेरिवेटिव क्या आएगी e power x into ai e power x into a. आप देखो यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे थोड़ा sin bx into e power x तो ये जो फैक्टर है ये किसके जैसा लग रहा है आपको y के जैसा. तो वहां पे y शिफ्ट कर लेते हैं. तो ये क्या आएगा b e power x into cos bx है जैसे का वैसे लिखता हूं. और यहाँ पे आएगा a y क्या आएगा वहां पे a y. दिस इज योर dy by dx. वंस अगेन डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको d2y by dx square d2y by dx square. यहाँ पे फिर से एक बार कौन सा रूल अप्लाई होगा आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. डन. सो वो क्या मिलेगा e पावर x जैसे का वैसा cos bx की डेरिवेटिव माइनस sin bx और क्या आएगी यहाँ पे bx की फिर से आएगी b. ओके सो ये माइनस b सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस b is there. Then here cos bx as it is and e power x की डेरिवेटिव a e power ax e power x की a e power x. यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ a e power ax into cos bx is there. Done. Plus a जैसे का वैसा y as the derivative dy by dx. y is the derivative dy by dx. Okay so now मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे. सो माइनस बी स्क्वायर. डन. सो माइनस बी स्क्वायर एंड हियर e पावर x into sin bx. मल्टीप्लाई करने के बाद तो e पावर x into sin bx तो क्या है आपका y है. सो माइनस बी स्क्वायर y भी लिख लेते हो साथ में. डन. मल्टीप्लाई विद सब्स्टिट्यूशन. ओके नाउ हियर क्या दिख रहा है देखो ab प्लस ab e पावर x into cos bx plus ab e power x into cos bx plus a dy by dx plus a dy by dx is there. Okay अब यहाँ पे देखो आपके पास ओके तो हियर d2y by dx स्क्वायर आपको यहाँ पे मिला है. अब आपको प्रूव क्या करना है देखो कि ये सीधी सीधी क्वांटिटी अगर आप यहाँ पे पुट अप भी करोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर. ओके सो y2 मतलब क्या है d2y by dx स्क्वायर और y1 की भी आपके पास वैल्यू है मतलब dy by dx की भी वैल्यू है. ओके यहाँ पे LHS में सब्स्टिट्यूट करो इक्वल टू क्या बता दो 0 बता दो. या फिर अब d2y by dx स्क्वायर मिला. अब आपके पास क्या चाहिए y1 चाहिए. तो y1 देखो y1 मतलब क्या है आपका dy by dx है. उस तरह से भी आप कर सकते हो. वो ट्राई करके देखो आप LHS इक्वल टू RHS क्योंकि आपको जो क्वांटिटी चाहिए थी वो सभी आपको मिल गई है. dy by dx भी आपको मिल गया है d2y by dx स्क्वायर भी आपको मिल गया है. बट क्या इस वे से आप उसका प्रूफ ला सकते हो. थोड़ा ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे. ठीक है तो यहाँ पे क्या है आपका माइनस बी स्क्वायर वाई है. यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला जो फैक्टर है ये dy by dx जैसा लग रहा है. क्या है आपका dy by dx का फैक्टर b into e power x cos bx. तो यहाँ पे भी देखो प्लस a को मैं जैसे का वैसा लिखता हूँ b e power x into cos bx. तो क्या लिख सकते हैं आप y1 minus ay मतलब क्या लिखोगे dy by dx minus ay आप लिख सकते हो. मैंने क्या किया b को हटा सॉरी a को हटा दिया तो ये b e power x cos bx लग रहा है मैंने. तो यहाँ पे देखो b e power x cos bx को आप क्या लिख सकते हैं dy by dx minus ay. डन.
प्लस क्या है ये a डिवाइड बाय dx जैसे का वैसा। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी d2i by dx square, ओके। नाउ माइनस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे a इंटू माइनस है माइनस ए स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हो आप। एक बार फिर से देखो, माइनस बी स्क्वायर वाई और ये a इंटू माइनस है माइनस ए स्क्वायर वाई, सो माइनस इज कॉमन इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई। ओके, देन नाउ a divided by dx plus a divided by dx, what is that? Plus twice a divided by dx, okay. So here d2i by dx square now, and then माइनस उधर जाएगा तो क्या मिलेगा प्लस a square plus b square y, and here प्लस 2a उधर गया तो क्या होगा माइनस 2a divided by dx equal to 0। ये आपका प्रूफ भी मिल जाएगा। मतलब ना एलएचएस में पुट अप करने की जरूरत होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो d2i by dx square dy by dx a square plus b square y आपको मिल जाएगा सीधा सीधा यार। ओके, चेक द स्टेप वंस अगेन। Okay, sixth problem is there. Sec inverse of sec x cube minus 5y cube divided by sec x cube plus 5y cube equal to f. Okay, आपको शो दैट करना d2y by dx square equal to 0। ये थोड़ा सा जाना पहचाना प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम के आंसर आपके हमेशा रहते हैं dy by dx equal to y by x। Okay, what is given to you? Sec inverse of sec x cube minus 5y cube divided by 7x cube plus 5y cube equal to क्या है आपका यहाँ पे m है। क्या करते इस टाइप के प्रॉब्लम में, ये sec इनवर्स उधर भेज दो सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या मिलेगा sec x cube minus 5y cube divided by sec x cube plus 5y cube equal to यहाँ पे मिलेगा sec m, बराबर है। इसके बाद क्या करोगे आप डिफरेंशिएशन लोगे, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा कोशेंट रूल लगेगा, उधर की तो डेरिवेटिव क्या है आपकी 0, तो कोशेंट रूल क्या होगा नीचे का जैसे का वैसा, मतलब 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब जैसे का वैसा इनटू द डेरिवेटिव ऊपर की क्या आएगी 7x क्यूब की 21x स्क्वायर माइनस 5y क्यूब की 15y स्क्वायर डिवाइड बाय dx, 15y स्क्वायर पावर आ गया कि पावर में से घटेगा, देन बीच में क्या आता है माइनस ऊपर का जैसे का वैसा 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब इनटू द डेरिवेटिव ऑफ नीचे की, तो यही आएगी सेम, सिर्फ माइनस की जगह क्या होगा प्लस, तो 21x क्यूब प्लस 15y स्क्वायर डिवाइड बाय dx, डिवाइड में क्या होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बट उधर की डेरिवेटिव क्या है सेकंड की 0 है, तो डिवाइड में कुछ भी है उधर जाने के बाद वो 0 ही होगा, बराबर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे आप। ओके, तो क्या क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 7x क्यूब इनटू 21x स्क्वायर, तो 21 into 7 147, 147x to the power 5, then here 7 into 15 minus 105 x cube y square divided by dx done। now second term से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 into 5 105 y cube x square done, 15 into 5 is what 75 y cube into y square y power 5 divided by dx। ओके, मल्टीप्लाई करो उधर भी सेम आएंगे वहां पे भी 7 into 21 ओके माइनस 147 आएगा x पावर 5, देन 15 into 7 105, तो वो क्या होगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस 105 x क्यूब y स्क्वायर डिवाइड बाय dx आएगा डन, देन माइनस 5 into 21 माइनस 5 into 21 कितना माइनस 105 minus 105 y cube x square, y cube x cube is there, sorry 21 x square is there ना, okay so 21 x square, so y cube x square, but ये minus into minus क्या होगा plus 105 y cube x square is there, okay done। now minus 5 into 15 minus 75, and this minus so it becomes plus 75 y power 5 divided by dx equal to what 0। एक बार फिर से अच्छे से कर लो, कैंसिल क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं, 147x power 5 minus 147x power 5 get cancelled, and here minus 75 divided by dx and here 75 y to the power 5 divided by dx get cancelled, क्या बचा है देखो minus 105x cube y square divided by dx
minus 105 x cube by square divided by dx. So you will get minus 210 x cube by square divided by dx. Okay, and here 105 y cube x square, 105 y cube x square. So once again 210 y cube x square उस साइड गया तो क्या होगा minus 210 y cube x square is there. Okay, so you can cancel this minus 210 minus 210. Here y square x square x square. So you will get dy by dx equal to उधर का बचा y, इधर से बचा x, so y by x. और अगर dy by dx आपका y by x आता है तो इसका डिफरेंशिएशन और से, क्योंकि आपको क्या प्रूव करना है d2y by dx स्क्वायर. तो d2y by dx स्क्वायर यहाँ पे लगेगा आपका कोशंट रूल. नीचे का जैसे का वैसा ऊपर की डेरिवेटिव माइनस ऊपर का जैसे का वैसा नीचे की डेरिवेटिव तो 1 ही होगी, डिवाइडेड बाय नीचे का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर. यहाँ पे देखो dy by dx की वैल्यू क्या पुट अप कर सकते हो आप y by x. So x into y by x minus y upon x square, x and get cancel, y minus y 0. नीचे कुछ भी है तो क्या करना है ऊपर 0 मिला. सो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो. और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपका dy by dx y by x अगर आता है तो आपका डेफिनेटली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी हमेशा 0 ही आएगी. ओके, ये एक बात हमेशा माइंड में रखो, ये सेट कर लो. ओके, सो उसके बाद के और 6 प्रॉब्लम है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं. ओके, bye everyone, take care and have a great day to all of you. Okay, and if you like this lecture, please subscribe my channel, that is PK's Academy of Mathematics.